السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں ہوں عامل حکیم مولانا ممتاز عالم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ تمام ولیوں کی گردنوں پر حضور غوث پاک کا قدم ہے۔ حضور غوث پاک اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ پتہ چلا کہ حضور غوث پاک تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں، تمام ولیوں کے بادشاہ ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات سے نوازا۔ بلند مقام، بلند مرتبہ، عالی شان اور نہایت ہی بڑی عظمت سے اللہ نے حضور غوث پاک کو نوازا۔ لہذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار بے حساب کرامتیں ظہور ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کمال عطا کیا، اتنی بڑی عظمت عطا کی کہ حضور غوث پاک اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو مردہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا۔ غوث پاک دعا فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ کتابوں میں روایت ہے، راویوں نے بیان کیا ہے، تو ان کی بے شمار کرامات ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا، اس لیے ہر ولی ہے غلام آپ کا۔ اور حضور غوث پاک کی شان دیکھیے، پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے، پل میں 70 مریدوں کے گھر بھی گئے، پھر بھی گھر میں رہا ہے قیام آپ کا، پھر بھی گھر میں رہا ہے قیام آپ کا۔ دوستو بزرگوں، میں بات کر رہا ہوں حضور غوث پاک کے کرامت کی۔ ایک دن آپ یعنی حضور غوث پاک اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول تھے، یعنی بچوں کو، طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ یکایک آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا، اور آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جب اپنا ہاتھ چادر میں ڈالا، چادر کے اندر، تو وہ سوکھا تھا، آستین سوکھی تھی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ نے اپنا ہاتھ نکالا، آستین نکالی، تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور یہ منظر، اس چیز کو طلباء دیکھ رہے تھے، لیکن طلباء آپ کے جلال سے ہیبت میں تھے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ سے کوئی سوال کرے، کچھ پوچھے، کیونکہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، حضور غوث پاک ہیں۔ اس واقعہ کے 2 مہینے بعد کچھ سوداگر بحری سفر کر کے، بحری یعنی سمندری سفر کر کے، سفر کے بعد بغداد پہنچے اور بہت سے تحائف یعنی تحفے لے کر حضرت کی خدمت میں یعنی حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے طلباء کے سامنے ان کا حال پوچھا، سوداگروں کا حضور غوث پاک نے حال پوچھا۔ سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 مہینے پہلے ہم پرسکون یعنی سکون کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ یکایک اچانک تیز و تند ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک تلاطم پیدا ہوا، موج مارنے لگا، طوفان، آندھی
हाँ, हमारा जहाज गिरदाब में फंस कर डूबने लगा, उस वक्त बेख्तियार हमारी जबान से या शेख अब्दुल कादिर जिलानी निकला। हमने देखा कि एक हाथ गैब से बरामद हुआ, यानी जाहिर हुआ, और उसने जहाज को खींचकर किनारे पर लगा दिया। तलबा ने इस वाकया की तारीख पूछी तो वही थी जिस दिन आपने भीगी हुई आस्तीन अपनी चादर से निकाली थी। यानी ये वाकया उसी दिन वाक़ हुआ था जिस दिन तलबा ने देखा था कि आप अपना हाथ चादर के अंदर रखे आपने, और कुछ देर के बाद निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा था। दोस्तों, इसी तरह गौसे पाक की बेशुमार करामत है। देखिए, रावी ने बयान किया है, फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू फरमा रहे थे, यानी वजू बना रहे थे, कि एक चिड़िया ने आप पर बीट कर दी। चिड़िया ऊपर उड़ रही थी, उड़ते उड़ते उसने हुजूर गौसे पाक के ऊपर बीट कर दी। आपने जलालत से सरे मुबारक उठाकर ऊपर देखा। गौसे पाक ने जलालत की नजर से गजब में ऊपर देखा तो वो ऊपर उड़ रही थी चिड़िया। आपका देखना ही था कि वो उस वक्त गिर के मर गई। आप जब वजू से फारिग हुए, आपका वजू बनाना हुआ, तो आपने कपड़े का वो हिस्सा धोया और अपनी कमीज मुबारक उतार कर दी और फरमाया कि इसको फरोख्त करके, यानी बेच कर इसकी कीमत खैरात कर दो, ये उसका बदला है। ये तो चिड़िया का वाकया हुआ। एक चूहिया की बात है। एक रात हुजूर गौसे पाक कुछ लिख रहे थे कि एक चूहिया ने छत में से कई बार मिट्टी गिराई। आपने हर बार मिट्टी साफ की, लेकिन चूहिया बाज ना आई। आखिर आपने सर मुबारक उठाकर छत की तरफ नजर जलालत से देखा तो आपने चूहिया को देखकर फरमाया, तेरा सर उड़ जाए। क्या फरमाया? चूहिया को फरमाया कि तेरा सर उड़ जाए। उस वक्त वो चूहिया मर कर गिर पड़ी, लेकिन आप पर रिक्कत तारी हो गई और आपने लिखना छोड़ दिया। एक खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर, ये चूहिया अपने कैफरे किरदार को पहुंची, यानी जैसी उसकी करनी थी वैसी उसको सजा मिली। आप क्यों आजुर्दा होते हैं? आप क्यों फिक्र करते हैं? फरमाया, गौसे पाक क्या फरमाते हैं? फरमाया, डरता हूं कि किसी मुसलमान से मुझे अजियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, और उसका भी हाल यही ना हो, यानी उसका भी यही हाल ना हो। मैं इस बात से डरता हूं। पता चला दोस्तों कि हमें हुजूर गौसे पाक को कोई तकलीफ नहीं देनी है। हमसे अगर हुजूर गौसे पाक को तकलीफ हुई तो पता चला कि हमारा भला नहीं होगा, बल्कि हमारा बुरा ही होने का अंदेशा है। लिहाजा गौसे पाक की मोहब्बत में ही जिंदगी गुजारने में कामयाबी है। दोस्तों, इसी तरह एक औरत बगदाद में रहती थी, और ये वाकया है 551 हिजरी का किताब में मनकुल है कि एक औरत बगदाद की अपने एक बेटे, यानी अपने लड़के को, जिसका नाम अब्दुल्ला, उसको साथ लेकर हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि हुजूर, मेरा ये बेटा, मेरा ये फर्जंद, मेरा ये बच्चा आपसे बेहद अकीदत रखता है, मोहब्बत करता है। मेरी ये चाहत है, यानी मैं चाहती हूं कि ये आपसे फैज हासिल करे, इल्म हासिल करे, इसे आप अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए, कबूल फरमा लीजिए। आपने उस औरत की इल्तिजा और उसकी दरखास्त को, उसकी फरियाद को आपने कबूल कर लिया और उसके बेटे अब्दुल्लाह को आपने अपनी खिदमत में रहने का हुक्म दिया, इजाजत दी। और हुजूर गौसे पाक ने उसे, यानी अब्दुल्लाह को, चंद अज़कार व अशकाल की तलकीन फरमाई और मुजाहिदा व रियाजत का हुक्म दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद, चंद दिन गुजरने के बाद, अब्दुल्लाह की माँ, यानी उस बच्चे की, उस लड़के की माँ अपने बेटे को देखने आई।
अब्दुल्ला बहुत दुबला और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, दुबला पतला नजर आ रहा था, उसकी हालत कुछ बदली हुई थी। और माँ जब आई तो माँ ने देखा कि उसका बेटा जौ की रोटी खा रहा था। ये देखकर वो औरत यानी बच्चे की माँ, लड़के की माँ हुजूर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुई। तो क्या देखती है कि आप हुजूर गौसे पाक भी उस वक्त खाना तनावल फरमा रहे थे। एक काब में भुनी हुई मुर्गी रखी थी जिसमें से कुछ खा चुके थे और हड्डियां पास पड़ी थी। उस औरत से सब्र ना हो सका। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ की ममता जोश में आती है अपने बेटे के लिए, और हुजूर गौसे पाक से पूछती है, कहने लगती है कि हुजूर आप तो मुर्गी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, अच्छा और उम्दा खाना खाते हैं, मेरे बच्चे को जौ की रोटी खिलाते हैं। ये सुनकर आपने यानी हुजूर गौसे पाक ने अपना हाथ मुर्गी की हड्डियों पर रखा और फरमाया, खड़ी हो जा, यानी कुम बेज़निल्लाह, उस अल्लाह के हुक्म से। क्या फरमाते हैं मुर्गी की हड्डियों को? खड़ी हो जा उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। आपका इतना फरमाना था कि मुर्गी जिंदा होकर उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। वो औरत सख्ते में आ गई। आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया, तेरा लड़का जब इस दर्जे पर पहुंच जाएगा उस वक्त जो जी चाहे खाए, इस वक्त इसके लिए जौ की रोटी ही मुनासिब है। वो औरत बहुत नादिम हुई, शर्मिंदा हुई और हुजूर गौसे पाक से माफी की खासगार हुई, तलबगार हुई। दोस्तों, पता चला कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार करामात से नवाजा। जिस तरह नबियों में, रसूलों में हमारे रसूल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं, इसी तरह वलियों में, अख्ताब में, अफराद में, अब्दाल में, यानी जितने भी वली हैं, तमाम वलियों में अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक को वो फजिलत बख्शी है जिस तरह नबियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अजमत और मर्तबा दिया है, इसी तरह वलियों में हुजूर गौसे पाक का मर्तबा है। दोस्तों, हुजूर गौसे पाक की बेशुमार करामात हैं, बेशुमार कमालात हैं, बेशुमार खूबियां हैं। उनकी अजमत, उनकी रिफत, उनका बुलंद मकाम, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी शहनशाही, उनकी बादशाहत हम लोग कमा कहूं समझ नहीं सकते। अल्लाह ही जानता है, उसके रसूल जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हुजूर गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करने और हुजूर गौसे पाक के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज मैंने गौसे पाक का जिक्र किया, गौसे पाक का तज़किरा किया, उनकी करामत बयान की। आइंदा मेरे आयुर्वेदिक दवाइयों और यूनानी दवाइयों के मुतालिक वीडियोस आने वाले हैं, अनकरीब इंशाअल्लाह आएंगे। तो मैं उसमें इलाज बताने वाला हूँ, जड़ी बूटी दवाइयों और कुरानी वज़ाइफ, रूहानी वज़ाइफ, इन तमाम चीज़ों के बारे में। जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, वो झगड़ा ख़त्म करने का वजीफ़ा, औलाद ना हो तो औलाद होने का वजीफ़ा, घर में बरकत ना हो तो बरकत का वजीफ़ा, इसी तरह की तमाम चीज़ें मैं बताने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अभी भी अगर अभी तक मेरे चैनल आमिल हकीम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की खताओं को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।